So this is the question paper, children. Generally we will get such type of question paper. Just today I am introducing. See, so it's a mains model question. Okay, so just you can see. Okay, children, see. Which of the following pair of ions, okay, which of the following pair of ions have same electronic configuration? Means this question wants to know, okay, that do you know how to write electronic configuration, children? So in that you can see that which of the following pair of ions have same electronic configuration, both of them are positively 3 charged, it cannot take place. Both of them are again positively 3 charged, not take place. Both of them are again having +3, it cannot be. Yes, okay, here it can take place. See, because we know Fe3 plus, we know the electronic configuration of Fe, 3d 6 4s2. But if you consider Fe3 plus means we have to remove 2 electrons from here and 1 electron from here. So it will become 3d 5 and 4s0. Next, we go about Mn. Mn, you know, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese. Okay, manganese. So manganese electronic configuration is 3d5 and 4s2. But if you want to write Mn plus 2 means you have to remove this 2 electron. So again it will be 3d5 4s0. So Mn plus 2 and Fe plus 3 have same electronic configuration. So this is the right correct answer, children. Okay. In same way, the most abundant transition metal in the earth crust. Zinc is not abundant. Okay. It is very costly material. Mercury, it is very costly material and it is of very less use in thermometer and all. So it is really very less in quantity. Iron everywhere, it is present in earth crust. Trucks and trucks of the ores of the iron are on the road. Okay. Gold, no, gold is very costly material. So it's a very common sense, use of common sense. The maximum melting point of metal of first transition series. So here we know that curve, children. Here we know that curve. Okay, the curve is like this. Okay, like this. So scandium, titanium, vanadium, the chromium come up to the top. So this one is the answer. It is wrong, it is wrong, it is wrong. Okay. So it is on the basis of information of melting point. Okay, children. So you have to remember like this. Next, which of the following pair of elements have same radii? Same radii. So zinc and cadmium, not possible. Scandium and yttrium, not possible. Lanthanum and actinium, no. Zirconium and hafnium, yes. So this question is based on, children, atomic radii, atomic size of transition elements or d block elements. The graph which we used for here was like this. Like this, children. Okay. First series. Then second series. Okay. And then third series. Both the size are same. 3D. Yes. This was 3D series. This was 4D and 5D. Hello, children. Who has joined with Galaxy JR Core? Galaxy J2 Core. What's your name, beta? Ma'am, Sir Noor and Fatima. Okay, Fatima. Fatima, actually today what happened? I thought just let to introduce how these question papers are solved. Okay. Oh. That's why just I am introducing so that you will also have
means some interest how to solve this question paper. Suppose this question paper you have what you have selected, child? PCB. Engineering, huh? PCB. PCB. Medical. Okay, okay. For PCP, really I am telling you, Fatima, if you follow my instruction properly, I will give you 100% assurance that I will means I will with the, if a training of 2 years is there, definitely you are going to do MBBS from a government college. Government college means there will be no fees, zero fees. It is known as free seat. Okay, Sir. children. Okay. If you really want to do MBBS, because my daughter is doing, no, my daughter is doing. I have trained my daughter. Now she is doing free seat MBBS, government college. Okay. Okay, sir. So just you follow my instruction properly. Okay, sir. Anyhow, so these questions will you may not understand, but just try to feel it that something is going in front of you and how we are discussing. Actually, this is from one chapter. His name is D and F block elements. It is from there. So because you have not studied, no, so just I am trying to solve in front of you, just to see it and enjoy. Okay, That sir. you will feel that so many things you don't know. So definitely, first of all, you should know that what you don't know. Okay, shall I start? Shall I continue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Continue. So children, when you see that हेलो लो, उनको मेरा भाई गाइड कर रहा है, बुलाओ उनको. हेलो. So see, then maximum ionization enthalpy in 3D series is, this is question based on ionization energy, children, and you know the last element of each series is having high energy. So zinc will be the having highest ionization energy. Highest ionization energy. Okay, it is not there, it is not there, it is not there. So first one will be the correct answer. Okay, you can see the values also, because you know this has a very stable electronic configuration, 3D10 and 4s2. So stable electronic configuration generally do not want to get disturbed. Okay, element which can show +2, +3, +4, +6, +7 oxidation state is, so here this question is based on, children, oxidation state. Oxidation topic name is variable oxidation state, and I have discussed this topic. So Fatima, not for you. Okay. Okay, sir. Those students, those who are in +2, I am solving their question paper. Okay, sir. So is this much. So chromium, cobalt, manganese. See, manganese, somewhere I have written electronic configuration just here. See, it is manganese. So manganese is having altogether 7 electron, 5 + 2. So this manganese only can go up to 7 oxidation state. So this is the correct answer. This is the wrong. This is the wrong answer, children. Wrong, wrong, wrong. This is the correct one. Okay, for correct one we will use green color. Correct. Which of the following best oxidant, children? Best oxidant. A best oxidant. Oxidant means oxidizing agent, children. Oxidizing agent. So which one is the better? Which one is the better oxidizing agent among chromium, iron, scandium, cobalt? So actually the oxidizing agent nature depend upon SRP value. Those who have high SRP value. So I have discussed
in SRP value topic that cobalt is having high SRP value than anybody. So this is the wrong, this is wrong, this is wrong. Only cobalt is having higher SRP value. So this will be having more and good oxidizing agent. Cobalt 3+. It is having higher SRP value. Next question number 33, children. Match the following. So this problem is based on magnetic property, children. Magnetic property. Mu equal to magnetic property. Mu is equal to root over n root over n plus 2 Bohr magneton. Okay. So n is the number of unpaired electron. So first we have to see scandium 3+. Scandium 3+. So scandium electronic configuration is 3d1 and 4s2. And 3+ means all these 3 electrons are removed. So there is no unpaired electron. No unpaired electron. And no unpaired electron means magnetic property will be 0. So scandium is related to 0. Scandium. Did you understand? So this is actually, it is the question is not written properly. This is A, this is B, this is C, and this is D. So A is related with 3. Now you can see A is related with 3. So where is A is related with 3? In this case and in this case. So these options are we can cancel, children. Okay, this option now we have to decide in among 1 and 3 which one is correct, because they are wrong in the first option only, second and fourth option. Now what we have to do? Now we have to see that 5.29. Just you try to understand 5.29 Bohr magneton, 5.29. So when n paired electron out of this, which one is the having highest unpaired electron? Vanadium 2+, copper 2+. Copper 2+ is having only one unpaired electron. Okay. Iron 3+ having n equal to 5. Let us see 5. So 5 plus 2. Okay. 7 root. Okay. 7 5 is 35. Okay. So mu will become, if it is 36, children. So root of 36 is equal to, Fatima? Hello, Fatima? Sir, 6. 6. तो अगर मान लेते ये 36 वैल्यू होता तो करीब 6 के वैल्यू आसपास होता, अगर ये 36 होता तो, लेकिन 35 है, इसका मतलब 5.9 कुछ समथिंग होगा, और वो कहां पर वैल्यू आ रहा है? देखो यहां आ रहा है। तो ये जो C है वो किससे रिलेटेड है? 1 से। तो अब देखो ये ऑप्शन तो पहले ही हम लोग बोल दिए कि गलत है, 2 बच्चा है। अब C के अंदर में आंसर 1 आना चाहिए। तो C के अंदर 1 किस में आ रहा बताओ? C के अंदर 1 किस में आ रहा है? A में इसमें आ रहा है ना, ऑप्शन A में। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन सर ये आप क्या करा रहे हैं? मैं लेट ज्वाइन की हूँ। लेट ज्वाइन की हो? सर मेरा नेट वो प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए। ओहो, ओके ओके। आस्था? यस सर। ओके बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। एक्चुअली आज आप लोग सभी लोग लेट ज्वाइन किए थे ना, लेट ज्वाइन किए थे, तो मैं क्या किया था, ये आप लोग के सीनियर लोग का क्वेश्चन पेपर है ये। ओके ओके। इसलिए मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि आप लोग को फ्यूचर में किस तरह से क्वेश्चन पेपर को फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा, उसका एक हल्का सा मतलब एक ट्रेलर दे रहा था आपको। यस सर। कि किस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा कोई चैप्टर को लेकर के।
तो उसी में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे रहा था। तो इसी बीच में मैं आपसे ये पूछा था कि यहाँ पर एक्चुअली ये सब प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आज आप लोग लेट ज्वाइन किए थे, इसलिए मैं इस काम में लग गया कि चलो कम से कम सीनियर लोग को हेल्प कर दूं, समझ गए। यस सर। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन 1, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखो M3 प्लस ई नॉट वैल्यूज, क्रोमियम में इतना वैल्यू, Mn3 प्लस से इतना वैल्यू, और Fe3 प्लस से 2 प्लस का द रिलेटिव स्टेबिलिटी, कौन पानी में ज्यादा रह सकता है, समझे बच्चों? कौन पानी में ज्यादा रह सकता है, कौन पानी में ज्यादा रह सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था कि पानी में कौन रह सकता है, पानी में तो जिसका SRP वैल्यू लेस होगा, SRP वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। SRP वैल्यू, तो ये जो यहाँ जो वैल्यू दिया है ना आपको, ये SRP वैल्यू है, ठीक है। क्रोमियम का इतना, तो इनमें तीनों में हम तीनों में 1 2 3 में सबसे कम SRP वैल्यू किसका है बेटा? ये वैल्यू देखो, SRP वैल्यू सबसे कम किसका है? कम से कम वैल्यू देख के, तो नंबर देख के तो बता सकते हो ना कौन नंबर कम है कौन नंबर ज्यादा। एक तरफ प्लस 1.5 है मैंगनीज से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड प्लस 0.8 और क्रोमियम से -0.4, कौन सबसे ज्यादा है? सर आस्था, स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रहा है। स्क्रीन सब दिख नहीं रहा है? यस सर। कैसा नजर आ रहा है सर वर्ड्स ब्लर आ रहे हैं। अभी? ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है, तो एक मिनट देखो, देखो यहां से एक बार फिर से चालू कर लेते हैं। अभी सही आ रहा ना केमिस्ट्री? यस हाँ यस तो सर। हाँ, केमिस्ट्री में बोलना चाहिए था ना बेटा, हम तुरंत तुरंत कर देते, कोई बात नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका ऑप्शन ये वाला है बेटा, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग पढ़े हैं ना? हेलो, यस सर। आपको होमवर्क भी दिया था ना मैंने? यस सर। ठीक सर है, आप मैंने वो देख, जो क्वेश्चन पेपर आपने भेजा था वो मैंने आपको सेंड कर दिया था सर, अच्छा अच्छा, बैठो बेटा बैठो। सॉल्व करके। हाँ ओके 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 बेटा, चलो बेटा इसको एक बार फिनिश कर लेते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं, ठीक है। हेलो ठीक। बेटा, यस सर। हाँ इसको खत्म कर लेते हैं। ये स्क्रीन अब ना अच्छा से नजर आ रहा है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 बन गया। क्वेश्चन नंबर 27 में ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा मालूम है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल इसमें कौन सा है? धरती पे क्या पाया जाता है बताओ? गोल्ड जल्दी से पाया जाता है क्या? जहां भी चाहो वहीं मिल जाएगा क्या तुरंत? आस्था, हेलो, यस सर। गोल्ड जल्दी से मिलता है क्या? नहीं सर। जमीन खोदो और गोल्ड मिल जाएगा क्या? ट्रक के ट्रक गोल्ड पार होते रहता है क्या कहीं पर? गोल्ड का और सर गोल्ड को तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, हाँ, मतलब एक्सट्रैक्ट तो सभी मेटल को करते हैं बेटा, लेकिन ट्रक के ट्रक किसका किसका और ज्यादा एकदम रोड पे चलते रहता है? किस मेटल का और?
या किस मेटल का यूज ज्यादा होता है ये बताओ, यूज जिंक, मरकरी, गोल्ड या सर आयरन? सर आयरन। आयरन, इसीलिए इसका मतलब है कि आयरन ही ज्यादा पाया जाता है। ठीक है बेटा, यस सर। दाम भी कम है सबसे, गोल्ड से आयरन का दाम कम है कि नहीं? हाँ सर तो जो चीप है। ज्यादा पाया जाता है उसी का दाम कम होता है। हेलो, यस सर। यस द सर। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो क्रोमियम का है बेटा, उसका ग्राफ हम बना के दिखाए थे कि देखो ये वाला, तो इसमें यहाँ पर क्रोमियम आता है, ये डी एंड एफ ब्लॉक में हम बताए थे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो ये करेक्ट आंसर होगा चिल्ड्रन। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम रेडियाई, ये वाला चीज, कारण क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको जब क्लास आगे बढ़ेगा ना आपको हम समझाएंगे बेटा, आप टेंशन मत लो। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन 3D सीरीज, तो जिंक का होगा बेटा, क्रोमियम का नहीं होगा, कॉपर का नहीं होगा, वानाडियम का भी नहीं होगा। ये मेल्ट आपको पढ़ाया मैंने मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी में। यस सर। एलिमेंट विच कैन शो +2 +3 +4 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जाहिर सी बात है किसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मैंगनीज का, ये वाला। तो 3D के अंदर 5 और 4s के अंदर 2, 5 और 2 कितना हो गया बेटा? 5 और 2 7। हो गया। अगर ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, तो उनके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बोलो? सर स्क्रीन ठीक से दिख नहीं रहा है, अभी ब्लर आ रहा है पूरा। सिर्फ बीच बीच में ब्लड हो जा रहा है ना। हाँ। अभी आया बेटा? हाँ सर। ठीक है, हम पूछ रहे हैं मैंगनीज में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल सकता है बताओ? 5D में है और 4s में है, और ये दोनों पार्टिसिपेट करता है निकलने के लिए। तो 7 7, निकलेगा। हाँ 7 निकलेगा। 7 से ज्यादा नहीं निकल सकता, 7 से कम निकल सकता है, 6 निकल सकता है, 4 3 2, समझ गए? यस सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? कोबाल्ट सर करेक्ट आंसर 7 नहीं है, सर। वानाडियम करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कितना तो दिया हुआ था इसमें? मैंगनीज। अच्छा, क्रोमियम भी नहीं है ना, मैंगनीज करेक्ट ऑप्शन है बेटा, हाँ याद रखना। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑक्सीडेंट, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये है बेटा इसका आप एसआरपी वैल्यू चेक कर लेना, इनका एसआरपी वैल्यू सबका कम है कंपेयर टू कोबाल्ट। उसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, आप निकाल के देख लेना। स्कैंडियम में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर करीब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हिसाब से हम लोग देख लिए, ये रॉन्ग था, ये रॉन्ग था, तो ये पूरा ऑप्शन रॉन्ग है फर्स्ट में। फिर ये तो करेक्ट था लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें लिखा है कि एसआरपी वैल्यू सबका दिया हुआ देखो, और जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी, मैंने कहीं पर लिखा है कि एसआरपी वैल्यू का स्टेबिलिटी सर एसआरपी क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब पानी में रहने के बाद इलेक्ट्रॉन टालने का कैपेसिटी जिसका ज्यादा रहेगा, समझ लो वो पानी में रहना नहीं चाहता, वो पानी से बाहर निकलना चाहता है। हेलो, यस सर। हाँ, जैसे हम मान लेते हैं हम लोग को कोई पानी में डुबा दे और मछली को डुबा दे, और दोनों में पूछा जाए कि पानी में कौन रहना पसंद करेगा, इंसान डूबना पसंद करेगा या मछली? सर मछली। मछली। तो इसमें हम लोग को मछली पहचानना पड़ता है बेटा, मछली। बताएं तो इसमें मछली कौन है? जिसका एसआरपी वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखा है ना, ये वाला वैल्यू, आप यस टेंशन सर। मत लो, मैं हर चीज समझाऊंगा, है ना। जिसका जिसका वैल्यू, जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम है वही मछली है। देखो इसमें ध्यान से देखो किसका एसआरपी वैल्यू कम है।
सर स्क्रीन फिर से ब्लर हो गया। ठीक है, वेट कर लो, जब सही हो जाए दिखे तब बताना मेरे को। थोड़ा सर वो मेरा नेट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है इसे। ठीक है। दूसरा बेटा, और इसको फातिमा को नजर आ रहा बेटा? सर अभी देखा है। ठीक है, अब हमको खाली ये बताओ ना, बाकी टेंशन मत लो, एसआरपी वैल्यू कर मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। इन तीनों में बताओ वैल्यू सबसे कम किसका है? सर ये क्रोमियम। क्रोमियम। इसका मतलब वो मछली है। तो अब बताओ पानी के अंदर कौन अच्छा से रहेगा? सर क्रोमियम ही। क्रोमियम। अब बताओ कहां कहां पर क्रोमियम को सबसे अच्छा दिखाया गया है, बताओ। इस केस में और इस केस में। इस केस में नहीं दिखाया गया है, इस केस में। तो इन केसेस को हटा दो, इनका एसआरपी वैल्यू कम है ना, मतलब इसको बोला है हाईएस्ट। यस सर। इन दोनों में पहचानना है। अब इन दोनों में क्रोमियम से काम नहीं बन रहा, देखो। अब हम लोग को दूसरा देखना पड़ेगा, आयरन में और मैंगनीज में किसका कम है? सर आयरन। आयरन। इसका मतलब ये ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये पानी में बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा, Mn3+। ओके, यस सर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड? जिंक के अंदर कलर्ड कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए मैंने आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, जिंक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैल्शियम 2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। Cu3+ के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, Cu2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। Cu, Yes, तो sir. ये कलर्ड कंपाउंड है बेटा, Cu2+। क्या बेटा, Yes, क्या बोल रहे sir. हो तुम लोग? क्या आपस में बात कर रहे हो? हेलो हेलो। Yes, sir. बोलो, मेरे से बात कर लो। चलो, ऐसे भी तुमको मालूम है ना, Copper2+, याद है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है कि नहीं? Yes, sir. ओके। Which of the following is used as catalyst in hydrogenation of oils? ये तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आता है। ये आयरन तो अमोनिया बनाने में काम आता है, तो ये भी नहीं यूज है, ये भी यूज नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की बात हो रही तो निकल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, यूज्ड। हालांकि थोड़ा अगर कोशिश करते तो पैलेडियम यूज आता, लेकिन ज्यादा यूज ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन में निकल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर इज निकल, बेस्ट आंसर इज निकल। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू, पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं भैया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक मतलब? पैरामैग्नेटिक मतलब अगर मटेरियल को मैग्नेट, उस मटेरियल के बगल से मैग्नेट लेके जाओगी ना, Yes, sir. तो ना हल्का हल्का अट्रैक्ट होगा, हल्का सा। हेलो, Yes, sir. अगर हल्का सा अट्रैक्ट होगा तब पैरामैग्नेटिज्म, और कस के अट्रैक्ट हो गया तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। Yes, sir. फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं उसको, फेरो, अगर स्ट्रांगली अटैक हो गया तो। समझ में आया Yes, बेटा? sir. हेलो। Yes, yes, sir. हाँ, अट्रैक्शन ही होता है, लेकिन वीक अट्रैक्शन होता है तो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और काफी तेज से हो गया तो उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। ये जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तब समझाएंगे ये वाला चीज, ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, तो ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यस, मालिएबिलिटी और डक्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मेनी ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज कंपाउंड्स आर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का नाम सुना है कभी आपने? नहीं सर। नहीं। आज का क्लास का लेवल बहुत हाई है, इसलिए आप टेंशन मत लेना बेटा प्लीज, ठीक है? यस सर। हाँ, फिर कल से हम फिर लो लेवल में आ जाएंगे, मतलब आप लोग का एकदम बेसिक पढ़ाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है? यस सर।
ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन यस करेक्ट बात है ये। दे आर वेरी हार्ड, करेक्ट है। दे रिटेन देयर मेटेलिक कंडक्टिविटी, यस सही है। दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव, नो मोर रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो तो, कौन कौन करेक्ट है इसमें? सर 1, 2 और 3। हाँ मतलब ये वाला आंसर, ठीक है बेटा। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक, ठीक है। तो ये वाला एम्फोटेरिक नहीं है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए बच्चों, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये जब हम टाइम आएगा आपको बताएंगे। विच ऑक्साइड ऑफ Mn इज मोर एसिडिक, तो वो Mn जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा हो वो एसिडिक में चला जाएगा। तो यहाँ पर Mn के ऊपर +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है और यहाँ पर +7 है, तो +4 से ज्यादा ये है, तो ये एसिडिक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो ये होगा बच्चों, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडियो एक्टिव्स, तो एक्टिनॉइड्स में मार दो। लेंथेनॉइड में कम रेडियो एक्टिव है, पी ब्लॉक में भी कम रेडियो एक्टिव है, ट्रांजिशन में भी कम रेडियो। विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक के अंदर मतलब n-2 के अंदर एफ के अंदर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n-1 डी में या तो 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और n s के अंदर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये किसमें कहीं पर है n-2 1 या सब में आ गया, तब फैसला लेना होगा n-1 डी से। यहाँ पर 0 1 ठीक दिया है, 0 10 ये रॉन्ग है, 0 5 रॉन्ग है, 0 2 रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर है बेटा। ये बेस्ड ऑन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। CLF ये लीनियर होगा बेटा, लीनियर मॉलिक्यूल। तो A का 3 में सब लोग हैं, मतलब इससे फैसला होने वाला नहीं है। CLF3, तो Cl का होता है 7 3 5, 7 3 10 10 डिवाइडेड बाय 2 5, मतलब sp3d। sp3d का मतलब Cl 1 2 3 4 5, F F F, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये टी शेप है, तो ClF3 टी शेप है बेटा, ठीक है। टी शेप, टी शेप, तो ये भी टी शेप से भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, 1 और 2, मतलब B का 1 और 2, तो B में 1 और 2 1 और 2, इसमें 1 और 2 नहीं है, 1 और 2 नहीं है, तो चलो यहाँ से 2 ऑप्शन कट गए हमारे पास, 2 ऑप्शन कट गए, खाली हम लोग के पास बचा 2। अब फिर कलेक्ट करना पड़ेगा ClF5। ClF5 में हो जाएगा, अगर इसका X निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl का कितना हो गया 7 और फ्लोरीन 5 है, डिवाइडेड बाय 2, 7 5 12 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा बेटा। ये सब चीज आप लोग को समझ में आएगा। sp3d2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो C का 4 आएगा, C का 4, T का 4, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। नो, sp3d2, C का केवल 4 आंसर होगा, 4, C का केवल 4 होगा। 5 नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लेते हैं ClF5 का, ClF5 6 है ना ClF5 का, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 है, Cl 1 2 3 4 5 6, F F F F, नीचे F, यहाँ एक लोन पेयर, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया। पेंटागोनल नहीं है ये है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल।
ठीक है, और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर तो 1 है यहाँ पर सीएल के पास। ठीक है, 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है। नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, मतलब 5 जुड़ा हुआ है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल नहीं है भाई। ठीक है, 4 सही है। नंबर ऑफ लोन पेयर 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं है ना सेंट्रल एटम में, क्योंकि फ्लोरीन के पास दुनिया भर का लोन पेयर है। खाली 4 ऑप्शन है, यही आंसर सही है बेटा, 2। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, आंसर 2 इज करेक्ट। solubility of noble gases in water, in solubility of noble gases in water, तो कौन सा भारी गैस है इसमें बताओ तो बेटा। सर जेनन। हाँ, जेनॉन सबसे भारी गैस है। जो भारी गैस होगा वो पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होगा बेटा। तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा नोबल गैस पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है। हिंट दे दिया आपको, जो भारी होगा उसमें वांडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, वो पानी के अंदर ज्यादा डिजॉल्व करेगा। यस सर। बताओ, इसमें बोल रहा है हीलियम ज्यादा डिजॉल्व होगा, रॉन्ग कर दे इसको। हाँ सर, हीलियम दूसरा नहीं में भी होगा हीलियम ज्यादा डिजॉल्व होगा बोल रहा है। सर। जेनन सर थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला ऑप्शन होगा। समझ में आ गया बात। यस सर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन ऑक्साइड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड I2O5, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, XeO3 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जेनॉन, तो XeO3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है बेटा, O डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर एक लोन पेयर, आंसर 1। एक कंपाउंड मेटल आयन जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, हैज स्पिन मैग्नेटिक 15 √15। √15 बोलो तो इस फार्मूला पे म्यू इज इक्वल टू √, ऐसा क्या नंबर होना चाहिए n का। n का फॉर्मूला है n+2। n का क्या नंबर होना चाहिए कि 15 आ जाए, बताओ तो बेटा। हेलो बेटा, यस सर। ये फॉर्मूला यूज करके n क्या नंबर होना चाहिए जिसमें रूट यहाँ पर 15 आ जाए पूरा। सर ये n+2 है। यहाँ अगर n को 3 मान ले, 3, यस सर। 3 और 2 5, 5 3 15। हेलो, समझ में आया। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो x प्लस है वो +3 है, +3। ओके, यस सर। टोटल नंबर ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स कंटेन 3D1 एंड 4s1। 4s1 किसमें है, क्रोमियम में है और कॉपर में है। और 3D1 किसमें है, 3D1 तो स्कैंडियम में है बस। ठीक है बेटा। यस सर। जब आप कल बताए थे ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने बोले थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह। ठीक है। यस सर। हाँ, तो आपने देखा होगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 एलिमेंट लिख सकते हैं, 3। देयर आर 3 एलिमेंट्स। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज +2 बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। द नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेल इन इनर सेल 3 बेटा। अभी मैंने देखा ना एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये इनकम्प्लीट आ रहा है, ये इनकम्प्लीट आ रहा है, ये इनकम्प्लीट आ रहा है, तो 3 सेल्स आर देयर, 3। ये मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है बेटा, मेंस लेवल का। ओके, मेंस लेवल का। ठीक है, वो भी किस पर,
डी एंड एफ ब्लॉक नाम का एक चैप्टर है उस पे, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। यस सर। हाँ, आप लोग लेट ज्वाइन किए थे तो मैंने एक शेयरिंग स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा था एक इसका वीडियो बनाकर सीनियर्स लोग को डाल देंगे, एटलीस्ट आप लोग नहीं आएंगे तो वीडियो बना के डाल देंगे। अभी बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। चलो आज इतना ही रखते, कल टाइमली आ जाइएगा प्लीज। यस सर। ओके, बाय बाय बेटा, बाय सर। बाय।